20 होगा, ऐसा नहीं आप बढ़ते ही चले जाते। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि गुड आफ्टरनून क्लास, टुडे वी विल स्टार्ट how to find out the electronic configuration. Electronic configuration is a very important topic because it will help you in entire inorganic chemistry. So that's why electronic configuration is very important. And how to find out the electronic configuration, because electronic configuration tells us two and one more many things, like how to find out the number of shell, how to find out the balance block also, and there are 4 blocks: S block, P block, D block and F block. So electronic configuration is very important, and with the help of electronic configuration we will learn number of shell, how to find out the number of shell, or as well as block. Okay, so let's start. First of all, electronic configuration. So electronic configuration so basically this is the electronic configuration. और electronic configuration का एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला तो नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उसका एक मेथड होता है जिसके अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जो जनरल मेथड होता है उसको समझ लेते हैं। क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 5s2, 5s2, इसके बाद में 5p6, 6s2, so 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10, 7p6 and 8s2. So this is the electronic configuration. So with the help of the electronic configuration we will find out what is the name of subshell. Subshell means block. Basically there are 4 type of subshell. Which one? S, P, D or F, and we can also say block. So block also S block, P block and D block or F block. So there are 4 blocks. So we will find out the blocks with the help of the electronic configuration. I will tell you how. Suppose करिए कि आपके पास कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल आपके पास एलिमेंट है नियॉन. सो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन? 10. So according to the atomic number, according to the electronic configuration, first of all we will write the electronic configuration. So what is the electronic configuration? 1s2, 2s2, 2p6. So you can see clearly this is the electronic configuration of neon, because the atomic number of neon is 10. So that's why 1s2, 2s2, 2p6. So this is the electron. First of all समझ लीजिए आप लोग, यहाँ पे देखिए ये रिप्रेजेंट करता है शेल को. किसको रिप्रेजेंट करता है? ये शेल को. और ये तो हम जानते ही हैं क्या होता है, सब शेल होता है. ठीक है, और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन. क्या होते हैं ये? इलेक्ट्रॉन. सो दैट्स वाई this is the configuration of electronic configuration. This is the electronic configuration of neon. So अब आप देखिए यहाँ पे, तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता लगेगा, how will I get to know, how will we get to know कि कौन से एलिमेंट से, कौन से ब्लॉक से ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है. तो देखिए यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है हमेशा कि कोई भी एलिमेंट है उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ब्लॉक में गया है, किस सबशेल में गया है. अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो P है, अब हम जानते हैं P जो होता है जनरली, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? P में गया है. तो ये जो नियॉन है ये कौन से ब्लॉक का है और कौन से सबशेल का है?
p block, or either you can say p subshell. Is it clear? तो देखिए यहाँ पे ये बता रहा है, हम पता लगा सकते हैं, we will get to know कि कौन से ब्लॉक का हमारा एलिमेंट है। तो देखिए ये जो नियॉन है ये कौन से ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का। देखिए लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सोडियम। तो सोडियम इज एटॉमिक नंबर 11। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम? 1s2 2s2 2p6 3s1। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी क्लियरली कि जो मैंने आपको बताया था इन प्रीवियस एग्जांपल में कि हमें ये देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में गया, कौन से सबशेल में गया है, सॉरी कौन से सबशेल में गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा सबशेल है, एस सबशेल है। तो ये कौन से ब्लॉक से हुआ, सोडियम कौन से ब्लॉक का हुआ, एस ब्लॉक का। ठीक है, ऐसे ही आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए मैग्नीशियम ले लीजिए। मैग्नीशियम यदि आप लेंगे तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2। तो यहाँ पे भी आप यू कैन सी क्लियरली कि जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में गया है, एस सबशेल में गया है। सो दैट्स वाई ये कौन सा सबशेल है, एस, और ब्लॉक भी कौन सा है, एस। समझ में आ रही बात? और ऐसे ही एज वेल एज हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है वो कौन से पीरियड का है, हमारा जो एलिमेंट है वो कौन से पीरियड का है, कौन से पीरियड से वो बिलोंग करता है। तो आपको ये देखना है कि जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से मतलब पीरियड का है, मतलब कि उसको देखना है कि भैया कौन सा ये शेल है, या आप ये देख सकते हैं कि कौन सा पीरियड है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना कि हमें पता है कि हमारी पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। तो हमें ये पता लगाना होता है कि कौन से पीरियड से एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। तो उसका भी सिंपल तरीका है, आप क्या कर सकते हैं, देखिए 1s2 2s2, जैसे मैंने एग्जांपल लिया सोडियम का, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो लास्ट शेल है वो कौन सा है, कौन सा लास्ट शेल, 3। मैंने आपको बताया था ये शेल होता है, ये सब शेल होता है और ये इलेक्ट्रॉन होता है। तो लास्ट शेल कौन सा है, 3। तो यही इसका क्या हो गया, पीरियड, यही इसका क्या हो जाएगा, पीरियड। तो देखिए आप और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, यू कैन टेक वन मोर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कैल्शियम ले लीजिए, फॉर एग्जांपल कैल्शियम। तो हम दोनों चीज़ें फाइंड करेंगे कैल्शियम में, कौन कौन सी, एक तो पीरियड और दूसरी सबशेल, सबशेल या आप यू कैन से ब्लॉक। तो देखिए यहाँ पे हमने कैल्शियम लिया, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम, 20। सो 20, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। तो देखिए ये हो गए 20 इलेक्ट्रॉन, आप चेक कर लीजिए 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए इसका एटॉमिक नंबर भी कितना है, 20 है। तो यहाँ पे देखना आपने तो 20 हो गए। ऐसा नहीं आप बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हमें ये भी देखना है कि हमारा जो एटम है, जो हमारा एलिमेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है। ठीक है, कई बच्चे में देखता हूँ वो बढ़ते ही चले जाते हैं, तो ये नहीं करना हमको। तो यहाँ पे हमने देखा 20 है, तो यहाँ तक हमने 20 तक भरा। तो देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, एस में गया हमारा। तो ये ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, एस। या फिर आप कह सकते हो सबशेल जो है, जिसको हम सबशेल भी बोलते हैं, वो भी क्या हो जाएगा, एस। और इस अब हम यदि बात करें पीरियड की, किसकी बात करें, पीरियड की। इफ वी टॉक अबाउट द पीरियड्स, सो व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस एलिमेंट, कौन सा शेल है, लास्ट वाला, 4th। तो हमारा जो पीरियड है वो भी कौन सा हो जाएगा, 4th। तो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कैसे होगा, क्योंकि प्रॉब्लम अब ये जैसे हम करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, सो इससे वी कैन फाइंड आउट सो मेनी थिंग्स। बट द थिंग इज दैट कि हाउ कैन वी मेमोराइज दिस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज हम कई बार भूल जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है 1s2 2s2, बट यहाँ 2p6 फिर 3s2 फिर 3p6 4s2 के बाद में 3 आ रहा है, फिर यहाँ पे ये 5 के बाद में 4 आ गया, तो 6 के बाद में फिर उधर 4 आ रहा है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एग्ज़ाम में हम भूल जाते हैं। तो
मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, और उससे आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, उसका ब्लॉक निकाल सकते हैं, उसका पीरियड निकाल सकते हैं, और हम बैलेंसी भी फाइंड आउट करेंगे। वी विल फाइंड आउट बैलेंसी ऑल्सो। सो देखिए इसकी ट्रिक सीखते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रिक, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, हमें पता है कि 4 हमारे पास क्या हैं, सबशेल हैं। क्या है हमारे पास? 4 सबशेल हैं। तो सबशेल हमारे पास होते हैं 4, हम जानते हैं कौन कौन से, एस, पी, डी और एफ। अब आपको ये ध्यान रखना है, अब देखिए यदि सबशेल होगा तो शेल भी होगा, ये बात भी हम जानते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ मैं, सबशेल देखिए एस, पी, डी और एफ, और इधर हमें पता है यहाँ है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन, और इधर होंगे शेल। अब आप देखिए यहाँ पे हमें पता है कि जो एस सबशेल है, ये मिनिमम इसके लिए कौन सा शेल चाहिए? 1 मिनिमम हमें चाहिए 1 शेल। और पी कहाँ से मिनिमम स्टार्ट होगा? 2 शेल से, और डी होता है हमारा 3 से, और एफ जो होता है हमारा वो होगा 4 से, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें यदि एस को लाना है तो उसके लिए हमें मिनिमम 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, पी के लिए हमें 2 से शुरुआत करनी पड़ेगी, डी के लिए मिनिमम 3। ऐसे नहीं होगा 2D हो गया या 1D हो गया, वो नहीं होगा। ऐसे एफ को हमें 4 से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसका जो शेल है वो 4 से स्टार्ट होगा। तो ऐसे नहीं है 3F हो गया या 2F हो गया या 1F हो गया, ठीक है। और यहाँ तो आप जानते ही हैं कि एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने जा सकते हैं बताइए मुझे? 6 इलेक्ट्रॉन। और डी में कितने जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ में कितने जाएंगे? बोलो, एफ में जाएंगे हमारे 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखिए विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर वी विल लर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इट्स अ वेरी वेरी इजी ट्रिक, ओके। इट्स अ वेरी वेरी इजी ट्रिक, ओके। अब यहाँ पे आप देखिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो आप सब जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉन एस में 2 से ज़्यादा नहीं जा सकते, पी में 6 से ज़्यादा नहीं जा सकते, डी में 10 से ज़्यादा नहीं, और एफ में 14 से ज़्यादा नहीं। और हमें ये भी पता है, वी नो वेरी वेल कि एस, पी, डी, एफ जो हैं वो सबशेल हैं, और हमें ये भी पता है कि जो एस शेल है, एस सबशेल है, उसके लिए हमें मिनिमम 1 शेल चाहिए, इसके लिए 2, इसके लिए 3 और इसके लिए 4। ये तो हो गई बात। अब आप यहाँ पे देखिए क्या करना है, जब भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आप क्या करिए, देखिए स्कूल, एस मतलब स्कूल, ठीक है। फिर इसके बाद में आप लिख लीजिए पब्लिक स्कूल। फिर इसके बाद में आप लिख लीजिए DPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल का नाम आपने सुना ही है, इधर दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर इसके बाद में एक और फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब आप देखिए बस कुछ नहीं करना, आपको ये करना है बस स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। हाउ मेनी टाइम्स यू विल राइट? 2 टाइम्स, ठीक है। अब आप देखिए, अब हमें पता है आगे क्या होता है, शेल। तो शेल, अब देखिए हमारे पास एस है तो एस मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में दूसरा एस आ गया तो 2, क्योंकि 1 तो यहाँ हो चुका है, अब 2, अब पी आ गया हमारे पास। देखिए पी जो है हमारे पास मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट होगा। जो एस है ये तो स्टार्ट हो चुका है 3, फिर इसके बाद में ये 3P, फिर एस कौन सा 4 है, फिर डी आ गया। अब डी हमें पता है मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होगा? 3 से स्टार्ट होगा। फिर इसके बाद में आप देखिए यहाँ पे 4P, फिर इधर देखिए ये हो जाएगा 5SD, 4D, फिर P कौन सा वाला है? 5P, फिर इसके बाद में ये हो जाएगा 6S। अब देखिए हमारे पास F आ गए। F मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होगा? 4 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? 4 से। D कौन सा चल रहा है हमारा? 4D हो चुका है, 5D, फिर इसके बाद में P जो हमारा है 6P, फिर S 7S, F 5F, D हमारा 6D, फिर P जो हमारा है 7P और ये 8S,
ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे बस, अब हमें पता है हमने सेल कंप्लीट कर लिए, सब शेल तो हमने पहले ही लिख लिए थे, और हमने शेल भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन जो हमारे हैं, एस में कितने इलेक्ट्रॉन 2, पी में कितने, फिर ये एस में 2, पी में कितने बताओ 6 इलेक्ट्रॉन, एस में कितने 2, पी में कितने 6, एस में कितने 2, डी में कितने 10, पी में 6, एस में 2, डी में 10, पी में 6, एस में 2, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन अभी बताया आपको, डी में 10, 6 में सॉरी पी में 6, एस में 2, एफ में 14, डी में 10, पी में 6 और 8 में एस में 2। बस देखिए, तो ये आपका क्या प्रिपेयर होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट्स अ वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। तो अब आप देखिए, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया, अब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, देखिए सब शेल पता कर सकते हैं हम, इसमें इसकी बैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, पीरियड्स पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी वेरी इजी ट्रिक। ओके, सो जैसे यदि हम देखें एक दो और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम एल्यूमिनियम चेक करते हैं। एल्यूमिनियम में हम ये चेक करते हैं, इसका व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 13। तो अब देखो कॉन्फ़िगरेशन तो आपके पास है ही, मैंने आपको ट्रिक बताई दी है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 3p1। अब आप देखो मैंने क्या बताया था आपको कि हमें सब शेल पता करना है या ब्लॉक पता करना है, तो हमें क्या करना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस एलिमेंट में किस सब शेल में गया है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन यही तो है हमारे पास, तो कौन सा सब शेल है ये, पी। तो सब शेल कौन सा हो जाएगा, पी हो जाएगा हमारे पास। और इसके बाद में पीरियड देख लो, पीरियड भी आप चेक कर सकते हो। देखो मैंने आपको क्या बोला कि लास्ट सेल कौन सा है हमारे पास, थर्ड, तो हमारा पीरियड भी कौन सा हो जाएगा, थर्ड। और आप चेक कर सकते हैं जो एल्यूमिनियम होता है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, बैलेंसी भी फाइंड आउट करेंगे। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल फाइंड आउट बैलेंसी with the help of electronic configuration. Till then, goodbye.